مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث سنی تھی، سب ویری موٹیویشنل حدیث، تو میرے لیے شوال کے روزے رکھنا آسان ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اس کو اس کا اجر اتنا ملتا ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کی حالت میں گزاری ہو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے وہ کیسے کہ ہم اگر ایک نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے۔ 36 روزے ملٹیپلائی انٹو 10 از 360، اور پورے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360۔ تو انسان پورے سال روزے کی حالت میں رہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ اگر ہم ہر سال روزے رکھتے ہیں اور پھر شوال کے روزے رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم پوری زندگی روزے کی حالت میں رہیں۔ بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنو پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر اس کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیں یہاں سے اب ہم منافقین کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ اچھے سے ایک بات اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ ہم نے جب سورۃ بقرہ کا شروع پڑھا تھا نا، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل دی تھی کہ منافق کون ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایک بات کچھ کرتے ہیں دوسری بات کچھ کرتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنا فائدہ، ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور ایک لمبی لسٹ تھی جو ہم نے پڑھی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے منافقین کا ذکر جو کر رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ کیا دیکھنا ہے کہ یہ آیات کب نازل ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شان نزول ہوتا ہے نا کسی بھی آیت کا، کہ اس وقت کیا سچویشن تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آج کے زمانے میں ہم پہ یہ آیات کا کیا اثر ہوتا ہے، ہم نے ان آیات سے کیا لینا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آج کے پورے پروگرام میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں منافقین کی بتائی ہیں، اللہ نہ کرے کہیں وہ چیزیں ہم میں تو نہیں ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہم میں۔ آج اگر میں کوئی لفظ ایسے بولوں گی جو ہماری ریگولر زندگی میں ہمارے سینٹنسز ہوتے ہیں یا ہماری دل کی خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ میں اس لیے بولوں گی کہ ہم ان آیات کو ریلیٹ کر سکیں، ہم یہ دیکھ سکیں کہ منافقین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی سزائیں سنائی ہیں کہ منافق جو ہیں وہ درک میں ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ منافق اور کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سزائیں دیں گے۔ تو وہ کیا چیزیں تھیں جو وہ کرتے تھے اور کیا چیزیں ہیں جس سے ہم بچیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی تھیں وہ کہیں اللہ نہ کرے ہم میں بھی کسی نہ کسی درجے پہ آ رہی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایک سے ایک 1 to 1 ہم ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سے نکال سکیں۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، تو دیکھیں یا اس لیول تک کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا درجہ جو ہوتا ہے نا بندے کا، کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے تھے اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آ کے ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اپنے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب ایک آزاد ریاست بھی قائم ہو گئی تھی، پھر مال غنیمت ہوتا تھا، ملتا تھا، اور مسلمانوں کو فائدے بھی اس وقت مل رہے تھے۔ اگر وہ اپنے کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب وہ اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا یہ پول کھول دیا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اب آپ اپنے اوپر ذرا یہ لے کے دیکھیے کہ ایمان بھی ہے، مسلمان ہے، لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان، فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درس ہے، کوئی ایسی جگہ پہ ہم انوائٹ ہمیں کیا گیا ہے، وہاں پہ ہم بڑی اچھی باتیں سنتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں، ہمیں جنت دوزخ کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ہمارا دل بے نرم ہوتا ہے، ہمیں بہت اچھی وہ باتیں لگتی ہیں۔ پھر اس وقت بیٹھ کے ہم بڑی بڑی اپنے آپ سے وعدے بھی کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد اب میں یہ نہیں کروں گی، اب میں ایسے اپنے آپ کو رکھوں گی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانوں گی، اور جو بھی ہمارے اندر کوئی بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں وہ ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عہد بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن دا مومنٹ ہم دوبارہ سے اپنی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ہم اپنی طرح کے ایسے لوگوں سے جو ہمارے پہلے کے دوست ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک نہیں ہوتے، ان کے عمل اتنے اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر ہم ان جیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم ہم نے کیا کہا تھا، کیا عہد کیا تھا۔ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم کبھی ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ایسے باتیں سنتے ہیں، پھر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پھر ہم دوسرے طرح کے لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر ہم ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت تک، اس لیول تک کیا ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔
अल्लाह सुब्हाना ताला से द मोमेंट हमको एहसास होता है, हम तौबा करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ कर देते हैं। और फिर ना सिर्फ माफ़ करते हैं, देखिए तौबा को मैं, ये इतने खूबसूरत सेंटेंसेस होते हैं कि दिल चाहता है बार बार बताएं। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कॉल। मैं अपने आप को भी रिमाइंडर की तरह बता रही होती हूँ बार बार, और आप लोगों को भी, कि देखिए जो तौबा करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला का अर्श उठाए हुए जो फरिश्ते हैं ना, और जो अल्लाह के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए वहाँ पे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला वो तमाम फरिश्ते उस बंदे के लिए जो तौबा करता है ना, उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला का ये भी वादा है कि तौबा करने वाला, जो सच्ची तौबा करने वाला होता है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला उसके तमाम गुनाह जो है वो नेकियों में बदल देते हैं। और वो अगर तो काफिर, तो वैसे भी मुसलमान अगर जब होता है तो उसकी पिछली पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हाना ताला जो आगे आयत आ रही है ना, लफ्ज़ आ रही है सुम्मा, फिर सुम्मज़दादू, फिर वो बढ़ जाते हैं कुफ्र में। और पहले वो मुसलमान, फिर काफिर, फिर मुसलमान, फिर काफिर, और फिर वो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि अब वो कुफर में ही बढ़ जाते हैं, अब वो वापस ईमान की हालत में नहीं आते हैं। तो उस सिचुएशन में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं लम यकुनिल्लाहु लियगफिरा, कि नहीं है अल्लाह कि वो बख्श दे, लहुम उन्हें, वला लियहदियहुम सबीला, और ना ही अल्लाह सुब्हाना ताला उनको कोई हदायत देगा। अब देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसी आयत पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला तो कहते हैं कि उनको किसी भी सूरत में अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और अल्लाह सुब्हाना ताला उनको हदायत भी नहीं देंगे। तो ज़हन में ये आता है कि जब अल्लाह ने कह दिया कि उनको हदायत नहीं देंगे, तो फिर उनका क्या कसूर है? वो बेचारे तो अब वो बिकॉज अल्लाह ही नहीं देना चाहता तो इसलिए वो गुमराह हो गए। लेकिन आप गौर करें इस बात को कि वो जब तक ईमान में थे और फिर कुफर में चले गए, फिर ईमान में आ गए, फिर कुफर में चले गए, तौबा के दरवाजे खुले रहे, वो रास्ता उनका खुला था। अगर वो फिर ईमान में आ जाते, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको कबूल कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि सुम्मज़दादू, फिर वो बढ़ गए किसमें? कुफर में। अब फिर उसके बाद देखिए अल्लाह सुब्हाना, तकदीर क्या है? अल्लाह सुब्हाना ताला का इल्म है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला को ये पता है कि उसका बंदा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किस हालत में होगा, किस में नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त वो अपने कुफर में ही बढ़ जाता है और उसके वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती है, तो देन अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला उसको उसी में बढ़ा देते हैं जिसमें वो, अगर वो कहते हैं ना कि वो दुनिया चाहता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला दुनिया दे देते हैं, वो आखिरत चाहता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला आखिरत दे देते हैं। अगर वो दुनिया और आखिरत चाहेगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला दोनों दे देंगे। अब वो खुद अपनी मर्जी से अपने कुफर में, अपने निफाक में बढ़ना चाहता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको उसमें बढ़ा देते हैं, और फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह उसको हरगिज माफ नहीं करेंगे और उसको फिर कोई हदायत नहीं मिलेगी। बश्शिरिल मुनाफिकीना। फिर बात आ जाती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला, आप देखें कि खुशखबरियां किनको मिलती हैं? खुशखबरियां मिलती हैं नेक लोगों को ना, मोमिनों को मिलती है। जन्नत की खुशखबरी देते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला, वहां पे दर्जात होंगे, अल्लाह की रहमतें होंगी, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह का दीदार होगा। जितने बड़े दर्जे उतने बड़े इनामात होंगे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि खुशखबरी सुना दो मुनाफिकीन को। मुनाफिकीन को क्या खुशखबरी सुना दो? देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला का गुस्सा, अल्लाह सुब्हाना ताला का एक होता है ना तंसिया, जैसे बात करते हैं कि इनको जरा खुशखबरियां सुना दो। किस चीज की खुशखबरी? अल्लाह सुब्हाना ताला ये खुशखबरी बता दो बी अन्ना, के बेशक लहुम उनके लिए है अज़ाबन अलीमा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। अल्लाहु अकबर। कि उनको बता दो, ये जो अब धोखा दे रहे हैं ना लोगों को, कि वो समझते हैं कि अपने थोड़े से फायदे के लिए ये कर लें, और ताकि वो समझते हैं कि तो बेवकूफ़ है जो मोमिन है ना, ये रिश्वत देते हैं ना, ये गलत काम करके कहते हैं देखो मैंने अपना कारोबार कितना चमका लिया, देखो मैंने तो रिश्वत दे के तो अपना अपने आप को पास करा लिया, मैंने ये किया था तो मैंने जॉब मुझे अच्छी मिल गई, मैंने इस तरह से गलत काम करके तो इस मुकाम पे पहुंच गया दुनिया में। दुनिया 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 को हासिल करने के लिए अगर वो ऐसा काम भी करता है, और मुनाफिकी और जो मोमिन है उनका मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला फिर क्या कहते हैं कि अज़ाबन अलीमा, कि उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरियां सुना दो। और खुशखबरियां भी ऐसी अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि देखिए मुनाफिकीन जो है ना, उनका मसला ये होता है कि उनको ये अगर एहसास वो आखिरत पे बिलीव नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि कुछ नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आखिरत में कौन सा हिसाब होना है। उनको जन्नत और दोज़ख की कोई उनको ख्वाहिश ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि दुनिया में जो कुछ है ना, बस यहीं पे इसका अजर मिल जाएगा, अजर मीन बदला मिल जाएगा, और दुनिया की तरक्की ही असल तरक्की है। और वो फिर अपने फायदे के लिए कभी इधर धोखा कभी उधर धोखा, और अपने आप को वो स्मार्ट समझते हैं अपनी अना में कि मैं तो बड़ा ज़हीन हूं, मैं तो बड़ा काबिल हूं, मैं तो इतने लोगों को धोखा दे के देखो मैंने कैसे अपने आप को कहां से कहां पहुंचा लिया। लोगों को तो समझ ही नहीं आती है।
यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मकसद सिर्फ यही है कि अगर ऐसी कोई भी बीमारी जो मुनाफिकीन की बीमारियों में से है, अगर हमारे दिल के किसी भी हिस्से में है तो हम उसको साफ कर दें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिरों के बारे में और मुनाफिकीन के बारे में जो सजाएं सुनाई है ना, वो उसको किसी भी हाल में कोई मोमिन बंदा, जो ईमान वाला बंदा है ना, वो उसके लिए बच नहीं कर सकता कि नहीं चलो खैर है, अगर ये थोड़ी सी मुनाफिकत है तो खैर है। मुनाफिकत को हमें अंदर से आज खुरच के निकालना होगा। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग जो यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया, वो लोग। अब दूसरी तरफ आ जाइए, अब मुसलमानों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो लोग जो काफिरों को अपना वली बना लेते हैं। औलिया किनको कहते हैं? जो दिली दोस्त होते हैं ना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कर लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि जो काफिर हैं, जैसे जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, या कोई ऐसे उन लोगों के साथ तुम लोग ने मिलना नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनको दिली दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि क्या होता था, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये था ना कि अभी गज़वात हो रहे थे, अभी मुसलमान अगर कोई ऐसे स्ट्रैटेजीज बना रहे थे या कुछ भी है तो वो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, तो उनके अंदर घुस के फिर वो बातें जो हैं वो दूसरे अपने लोगों को जाके बता देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे वार्न कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को तुम दिली दोस्त नहीं बनाओ। और आजकल के ज़माने में आप देखिए कि हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों कह रहे हैं, और आगे आपको इसकी पूरी डिटेल आएगी कि वजह क्या है कहने की। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया, कि वो लोग जो काफिरों को दोस्त बना लेते हैं मिन दूनिल मोमिनीना, मोमिनों को छोड़ के। क्यों बनाते हैं दोस्त? अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी रीजन क्या बता रहे हैं कि इस वजह से उनको दोस्त बनाते हैं। अयब्तगूना, क्या तुम ये चाहते हो इंदहुमुल इज़्ज़त, कि उनके पास बड़ी इज्जतें हैं। तुम कहते हो कि वो बड़े पैसे वाले, वो तो इतने बड़ा उनका मुकाम, और कहाँ वो लोग हैं, और अगर हम इनसे दोस्ती करेंगे तो कल को हमें फायदे मिलेंगे, और अगर हम इनकी पार्टीज में होंगे तो व्हाट्सएप पे आ जाएंगी तस्वीरें, और फिर उसके बाद फेसबुक में तस्वीरें आ जाएंगी और सारी दुनिया देख लेगी कि हम तो ऐसे लोगों के साथ जाते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि यू कैन रिलेट विद दीज थिंग्स, कि आजकल हम क्या करते हैं। एक छोटी सी बात होती है, एक छोटा सा फंक्शन घर में होता है, उसमें से बेस्ट पिक्चर्स निकाल के आप उसको फेसबुक में लगा देते हैं। अभी कब तो वो लोग जो जरा जिनके घर में थोड़ा सा गम है, परेशानियां हैं या कुछ है, उनको देख के फिर हमें रोना क्या आता है कि हमें नजर लग गई है। अब अच्छे भले थे तो अब लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। अब देखो मेरा बच्चा माशाल्लाह इतना अच्छा था, अब ये हो गया। तो नजर तो बरहक है ना, नजर लगती है। हमारी हरकतें ऐसी हैं, हम जानबूझ के जो इतनी सी चीज होती है ना, उसको इतना बड़ा बड़ा करके बताते हैं लोगों को, रज के नजर लगाएं ताकि, और फिर उसके बाद रोने नहीं खत्म होंगे हमारे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे, हमें ये समझ आ जाए कि या रब्बुल आलमीन, आप जो कुछ हमें इन आयात में सिखाना चाह रहे हैं हम अपने अमल में ढाल दें। क्योंकि हमने अपनी जिंदगियों में इतना नॉर्म कर लिया ना इन चीजों को, कि जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं लो, हम इसलिए तो नहीं पिक्चर्स डालते ना, ये तो मेरी अपनी खुशी के लिए, मैं थोड़ी शो ऑफ के लिए डालती हूँ, मैं थोड़ी इसलिए डालती हूँ। लेकिन आप देखें तो सही, आप अपने दिल से पूछें, ऐसे मामले अपने दिल से पूछा करें कि क्या हम कर रहे हैं। और फिर एक लंबी लिस्ट होती है, फिर हम सारों के घरों में घुसे होते हैं। अच्छा, उसने उसकी पिक्चर, उसकी पिक्चर्स, उसकी पिक्चर्स, उसकी पिक्चर्स, उसकी दोस्त की दोस्त की पिक्चर, दोस्त की दोस्त की पिक्चर्स देखते देखते कहाँ से कहाँ घंटों गुजर जाते हैं। और फिर एकदम से एहसास होता है कि मैं इतनी देर बैठी रही हूँ फेसबुक में, और फिर बंदा अपने आप को हटाता है वहां से कि मैंने किसी तरह से हटूं यहाँ से। कितना वक्त जाया करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या तुम उनके पास इज्जतें चाहते हो, तुम्हारे साथ उनका नाम आ जाए, तुम उनके साथ उनके घरों की पार्टीज में चले जाओ, तुम उनके साथ कोई रिश्ते बना लो, तुम उनके साथ कोई ऐसा बता दो, हाँ मैं उनको जानती हूँ, मैं वो बंदा आपको जाने ना जाने, लेकिन क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, कभी किसी गलती से किसी पार्टी में अगर कभी तस्वीर ही उतर गई हो, फिर आप वो भी उनको दिखाना जरूरी होता है, देखो मैं इस बंदे को जानती हूँ, ये मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम क्या करते हो, अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमिया, कि इज्जतें तो सारी की सारी रब के पास है, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस हो जाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी सारी दुनिया को तुम्हारे आगे ले आएंगे। तुम जिनसे इज्जतें चाहते हो ना, अल्लाह को नाराज करके, उसकी बातों से इनकार करके, दूसरों को खुश करके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी इज्जतें नहीं देंगे। तो आइए इंशाअल्लाह अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या फरमाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 140 और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या सिखा रहे हैं। वक़द और यकीनन तहकीक नज़ला उसने नाजिल किया अलैकुम तुम पर फिल किताबी इस किताब में, किसमें? कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म तुम्हें दे दिया है। क्या हुक्म दिया अल्लाह जी? कि ये हुक्म दिया है अन इज़ा समिअतुम, कि जब तुम सुनो आयातिल्लाहि युकफरू, कि अल्लाह की आयात का कुफर किया जाता है, बिहा उनका, व युस्तहज़ाउ बिहा और उनका मजाक उड़ाया जाता है। अब आप गौर से सुनिएगा इस बात को कि अल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया है तुम्हें इस किताब में कि जब इजाज समय जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयात का इनकार किया जा रहा है या अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा है, फला तक़अदू माहुम, उनके साथ मत बैठना। अब यहाँ पे हम ब्रेक लेके अब इसको पहले समझ लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। देखिए हम अक्सर ये नहीं होता कि आप जरा अपने गौर कीजिए, हमने कब सुना होगा कोई एक ऐसा जोक सुना होगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिसमें मौलवियों का मजाक होता है, अल्लाह के बंदों के मजाक उड़ा रहे होते हैं, फिर इसमें जन्नत और दोज़ख का मजाक उड़ा रहे होते हैं। आपने बड़ी कॉमनली ये बात सुनी होगी कि मैं लफ्ज़ नहीं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप खुद ही से आपको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ कि जी हमने तो दोज़ख में तो इतने वैसे वाले लोग होंगे, वहां तो बड़ा फन होगा, जन्नत में सारे मौलवियों ने होना है, उधर तो इतनी बोरियत होगी, हम उधर ही ठीक है। मजाक जिससे उड़ाते हैं और हम सुनते हैं ऐसी बातें। और कभी कुरान की अगर कभी डिस्कशन होती है, जब हम पार्टीज में होते हैं, यूजुअली डिनर्स पे होते हैं, तो और कोई बात नहीं होती, कभी ऐसा होता है कि कभी कोई इस्लाम की बात होगी और फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कभी कोई सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, नहीं कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, अब छोड़ो, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे थोड़ी हर एक को पकड़ना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कब बस यही करते रहेंगे, कोई नहीं मुसलमानों ने सबने जन्नत में चले जाना, ऐसे ही नहीं डराओ, दुनिया में भी तो अब रहना ना, दुनिया क्यों बनाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब इसमें भी रह के सारा कुछ करना ही है ना। अगर देखिए कि ऐसी ऐसी बातें होती है, मैं सेंटेंस इसीलिए यूज कर रही हूँ कि हम रिलेट कर सकते हैं कि उन जगहों पे बैठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहाँ पे, अब कितनी दफा आपने ये भी सुना, नहीं हिजाब का कोई जिक्र है ही नहीं कुरान में, अल्लाह ने वो तो जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए था, वो हुक्म आम बंदों के लिए तो है ही नहीं है, किधर लिखा हुआ है कुरान में ये है वो है। अब क्योंकि बहस करने वाला उसको भी इतना नहीं पता होता, जिससे करे उनको भी नहीं पता होता, सम टाइम उन्होंने खुद से कुरान में नहीं पढ़ा होता, दूसरों से डेफिनेटली सुना होता है, लेकिन वहां पे बहस कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फला तक़अदू माहुम, तो मत बैठना उनके साथ। क्यों नहीं बैठना? क्योंकि हत्ता यहाँ तक के यहूदू फी हदीसिन गैरिही, यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाए। अब ये अदब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसी बात हो तो उनके साथ नहीं बैठना, अगर किसी और काम में मसरूफ हो जाओ, वहां से उठ जाओ बेसिकली। और अब देखिए कि दो तरह की चीजें हैं। अगर कई दफा ऐसा होता है कि फैमिली है, रिश्तेदार हैं, कई दफा बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, फैमिली में कोई ऐसी बात कह देते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसी बात कह रहे हैं, तो आप उनको तो अगर टोकोगे या आप उनको कुछ कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो आपने क्या करना, आप आराम से उस जगह से उठ जाए। लेकिन अगर यही बातें, ऐसी बातें आपकी फ्रेंड्स में, देखिए फ्रेंड जो होती है ना वो हमारी चॉइस की होती हैं, वो हमने अपनी मर्जी से बनाई होती है ना। जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन जहां पे दोस्त ऐसी बात करेंगे तो वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां पे आपको उठ जाओ फौरन। और फिर वहां पे अब दोस्तों के साथ तो आप ये कर सकते हो कि आप उनको बताओ फौरन के देखो ये आप गलत कह रहे हो, आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो, या आप किसी भी तो उनको समझाने के लिए कह सकते हो। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, कि तब अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो और तुम सोचते हो कि चलो अब मैं थोड़ी बात कर रही हूं, मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, ये तो मेरे दोस्त बात कर रहे हैं ना, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैं उठूंगी तो बुरा लग जाएगा, या उनकी इस खातिर के वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये तो मौलवियानी हो गई है, इसने अब नया नया कुरान पढ़ना शुरू किया, अब देखो ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो तो फिर तो तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर, देखिए ये दो चीजें हैं, नंबर एक वहां से उठ जाओ, नंबर दो अगर तुम नहीं उठते हो तो क्या होगा कि फिर तुम उससे ऐसे हो जाओगे। और अगर उठ के उस वक्त तक, कब तक उठोगे, जब तक वो किसी और बात में मशगूल नहीं हो जाते, वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अब ये दोनों सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए, एक तो रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, या ऐसा रिश्ता है कि आप उठ तो जाते हो लेकिन आपने वहां बहस नहीं करनी है, आपने उनको कोई बात नहीं करनी। लेकिन जहां पे आपकी दोस्तों का मामला है वहां पे आप कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आप गलत कह रहे हो, वहां पे आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना,
जमा करने वाले हैं मुनाफिकीन को, बल काफिरीना, और काफिरों को, फी जहन्नम जमिया। ये सब के सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जहन्नम में मुनाफिकीन और काफिरों को जहन्नम में जमा कर देंगे। यहाँ पे काफिर और मुनाफिक को एक ही लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले आए हैं। तो फिर ऐसी जो भी बीमारियां हैं जो मुनाफिकीन में है वो फिर हमें अपने अंदर से निकालनी है ना। और आप देखिए कि ये तो वो अदब है जो हमारी रेगुलर जिंदगी के अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बैठे कौन रहेंगे? मुनाफिक बैठे रहेंगे। वो उनको ये डर होगा कि कहीं हम ऐसा उठ जाते हैं तो फिर ये लोग हमें बात करेंगे, कल को हमें पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, कल को कहेंगे ये तो मौलवियानी बन गई है, इसको तो सारा वक्त यही पता है, इसके साथ तो अफानी नहीं होता, इसलिए इसको पार्टीज में ना बनाओ। तो नहीं, मैंने तो अपना वो रखना भी है, मैं तो उनके साथ उन जैसे, उधर चले जाओ तो उन जैसे। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताएंगे उसके बारे में भी। अल्लाह से दुआ करते जाएं कि ये बीमारियां कोई छोटी बीमारियां नहीं है, ये नासूर की तरह हमारे अंदर पैदा हो गई हैं। और वो जाने के, जब तक देखिए हमें बीमारी का पता होगा तभी तो हम उनको बाहर निकालेंगे ना। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीजें होती हैं, हम सोचते नहीं है, हम बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ये फलां बंदा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वहां से उठ जाओ, और किसी और बात में जब तक वो ऐसी बात किसी और बात में नहीं मशगूल हो जाते या टॉपिक बदल नहीं जाता, तब तक तुम वहां पर वापस नहीं बैठोगे। अगर तुम वहां से नहीं उठते हो तो फिर तुम उन्हीं जैसे हो, और अगर तुम उन्हीं जैसे हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मुनाफिकीन और काफिरों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम में सबको फेंक देंगे। और मुनाफिकीन की कौन सी जहन्नम में फेंकेंगे? दर्क में फेंक देंगे। दर्क एक ऐसा जहन्नम का दर्जा है, कहते जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। हमें अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि जो मेरे रब ने बताया है कि ये बीमारियां मुनाफिक क्यों उनको कह रहे हैं? इसलिए कि उनमें ये बीमारियां हैं। तो हम मुसलमान हैं, कहीं ये बीमारियां हम में तो नहीं है, ये आदतें हम में तो नहीं है, हम कन्वीनियंटली ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, जो लोग इनकार करते हैं, इंतजार कर रहे हैं, बिकुम, तुम्हारे बारे में, फ़इन काना लकुम, बस अगर हो तुम्हारे लिए, फतहुन, कोई फतह, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, कालू, कहते हैं अलम नकुम माकुम, कि क्या हम उनके साथ नहीं थे? तो क्या हम तुम्हारे साथ नहीं है? कि ये वो लोग हैं जो इंतजार इस चीज का कर रहे होते हैं कि जहां पे फायदा होगा वहां पे हम चले जाएंगे, जहां पे नुकसान हो रहा है वहां पे सो हम मुंह मोड़ लेंगे, भले वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है। वक्त ऐसी, वो जैसे कहते हैं ना, ऊंट वेट करते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है कि कहाँ पे फायदा होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी बात अल्लाह खोल के बयान करते हैं कि देखो ऐसे लोगों की ये भी एक बीमारी होती है कि जहां उनको फायदा मिलता है वहां पे वो बैठ जाते हैं। वह इन, और बेशक काना है लिल काफिरीना नसीबा, और बेशक है और अगर हो काफरों के लिए नसीबन, कोई हिस्सा, कालू, कहते हैं अलम नस्तहविज अलैकुम, कि हम गालिब आने लगे थे तुम पर, वनमनाकुम, और हम बचा रहे थे तुम्हें, मिनल मोमिनीना, मोमिनों से, फल्लाहु यहकुमु, तो अल्लाह फैसला करेगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, यौमल क़यामत, क़यामत के दिन। अब क्या होता था कि जो वही बात है जो मैं पहले कह रही हूँ कि मोमिनों को फायदा होता था तो उनकी तरफ चले जाते थे, काफरों को फायदा तो उनको कहते थे कि देखो हमने उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ जंग नहीं की है, या हमने उनके साथ मिलकर उनका साथ नहीं दिया, हम तो इसलिए अगर हम उनका साथ देते तो फिर तो तुमने तुम्हें फतह नहीं होनी थी, तो हमने तुम्हारी खातिर ऐसे नहीं किया ताकि वहां पे भी हम उनकी गुड बुक्स में आ जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वलम यजअलल्लाहु, और हरगिज नहीं बनाएगा अल्लाह, लिल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला, के काफरों को मोमिनों पर कोई रास्ता नहीं बनाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में काफरों को और मोमिनों को अलहदा कर देंगे। ला यस्तवून, वो बराबर हो ही नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि मोमिन एंड काफिर बराबर नहीं हो सकते। तो एज अ मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो बार बार चीज बता रहे हैं कि तुम्हें मोमिनों का साथ देना है, तुम अपनी दुनियावी थोड़ी से फायदे के लिए ऐसे लोगों का साथ ना दो। ये मुनाफिकत की बीमारियां हैं, इनको अपने अंदर से तुम्हें निकालना होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, कि बेशक मुनाफिकीन धोखा किसको देते हैं? अल्लाह को धोखा देते हैं। अल्लाहु अकबर। आप देखिए जरा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, हमने सूरत बकरा के शुरू में जब पढ़ा था युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने साथ ईमान वालों को रखा कि मुनाफिक क्या कहते हैं कि अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, कि अल्लाह कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते मगर वो अपने नफ्सों को धोखा देते हैं। वो समझते हैं कि मोमिन जो है ये तो बेवकूफ है, इनको क्या पता, ना ये रिश्वत लेते हैं ना ये ऐसा कोई काम करते हैं। देखो हमने तो यहाँ पे ये काम किया, उसको बेवकूफ बनाया, उसको धोखा दिया और हमने इतने फायदा उठा लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये दुनिया के मामूली से फायदे के लिए ये समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, इन्होंने अपने आप को ये धोखा दे रहे हैं।
اور کس کے خاطر دے رہے ہیں؟ آخرت کی خاطر دے رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں مومنوں اور کافروں کو علیحدہ کر دیں گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعهم، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ. اب یہ دیکھیں بہت ڈرنے والی اور بہت سوچنے والی آیت ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، پہلے کیا بات کہی تھی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہے. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اب اپنے دل پہ یہ آیت لکھیے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو وہ انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ منافق ہے نا، ان کے بارے میں ذرا اپنی نمازیں اب ہم چیک کریں. اپنے دل سے پوچھئے کہ کب ہم نے نماز کو اتنے ذوق و شوق سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو ہمارے اندر پھر انتظار کہ کب مغرب کی نماز ہو، اذان ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر، یہ سوچنے کی بات ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں کہ اچھا جلدی جلدی، اب تو کھانا پکانے کا ٹائم ہے، اچھا 2 منٹ رہ گئے، جلدی جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہ ڈرامے کا وقت آ رہا ہے، 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اور لیکن ہم نے وہ 5 منٹ کی جو نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا جو بریک بیچ میں آتا ہے نا، کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس میں بھاگم دوڑ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نماز کا، کیونکہ وہ 1 گھنٹے کے درمیان میں نماز کا وقت گزر جانا ہوتا ہے تو اس میں ہی نماز پڑھنی ہے نا، تو پھر وہ جو بریک کا وقت آتا ہے اس کے اندر ہم بھاگم دوڑ فرض اپنے پورے کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس کی بیماری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤنا، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں ناسا، لوگوں کو. کیسے دکھاوا کرتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں پھر آپ کو ایک دفعہ یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں، الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورے اللہ کا شکر ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں. میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر یوزلی پاکستان میں تو مسجد میں نہیں عورتیں جاتی ہیں، امریکہ میں ہم لوگ یہاں پہ مسجد میں جاتے ہیں، جیسے یوزلی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کل کرنا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں کر دیتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں پہ آ جائیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگوں نے جنہوں نے کبھی بھی نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھی ہو، صدیوں میں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن وہاں پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو مسجد میں آئے ہیں اور جماعت بھی ہو رہی ہے، سارے نماز پڑھیں، شرم و شرمی کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مسلمانوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یراؤنا، وہ دکھاوا کہتے ہیں ناسا لوگوں کو. اب دیکھیے جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عین مغرب کے ٹائم پہ کھانا کھول دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ ہی کر دیں کہ جی مغرب کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہے، آپ لوگ نماز پڑھ لیں. آپ خود غور کیجئے گا کہ ہوتا ہے بہت جگہوں پہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیے گا کہ ڈنر پہ جب ہم جاتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، یا کوئی بھی رات کا جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب کھانا کھول دیتے ہیں، اناؤنس ہوتا ہے، پھر لوگ پاگلوں کی طرح کھانے کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ لائن کہیں لمبی نہ ہو جائے اور ہمیں کھانا بعد میں، نماز تو دیکھی جائے گی بعد میں بھی پڑھ لیں گے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 142 سورۃ النساء. اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تیسری بات کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَا يَذْكُرُونَ، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑا. قلیلا تھوڑا ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور کتنی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، کہ تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں، شکر ہی نہیں اللہ کا ادا کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں مذبذبین بین ذالک، اب وہ تذبذب میں ہے، بین ذالک لا الہ الائی، نہ طرف ان لوگوں کے، ولا الہ الائی، اور نہ ہی ان دوسری طرف کے لوگوں کی طرف، کبھی ادھر لٹک جاتے ہیں کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو کشتی کے بالکل کنارے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا بھی کشتی ہچکولے کھائے گی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ الٹ کے پانی کے اندر ہی نہ گر جائے، لیکن جو لوگ درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، کشتی ہچکولے بھی کھا رہی ہے تو چین سے محفوظ ہیں ادھر. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے لوگو ادخلوا الاسلام کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیوں ڈرتے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں اگر پورے کے پورے داخل ہو گئے تو زندگی کیا مشکل ہو جائے گی؟ کیا پھر ہم لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا؟ میری زندگی سے کیا فن ہی ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حلال چیزیں ہیں نا، ساری چیزیں حلال ہیں. کچھ چیزیں کچھ گنتی کی آپ ہاتھ سے گن سکتے ہیں، کچھ گنتی کی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، جو گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہیں، جو حلال حرام میں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن باقی تو ساری چیزیں حلال ہیں. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بکنے کی ضرورت ہے.
अल्लाह को ये कहने की जरूरत है कि या रब्बुल आलमीन मैं सारी की सारी आपकी, मैं समेना व अताना करने वाली हो गई। लेकिन एक दफा पता है जब जुबान से निकालते हैं ना तो ये हमारा दिमाग जो होता है ये बड़ा तेज होता है, ये बड़ा चालाक है, फौरन एक्सेप्ट कर लेता है, मुंह से आवाज निकलती है ये पूरा एक पिक्चर क्रिएट कर देता है और फिर हम उसके मुताबिक अमल करना शुरू हो जाते हैं और आसानियां कर देता है फिर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानी कर देंगे ना, जिसके लिए हम बिकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम समेना व अताना करने वाले हो गए, आप हुक्म कीजिए। हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कैसे हमें संभालते हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वमन युद्लिल्लाहु, और जो कोई जिसे भटका दे अल्लाह, फलन ताजिद लहू सबीला, तो वो हरगिज कोई रास्ता नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए ये वही आयत है, वैसी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर वो फिर बढ़ जाता है उसी गुनाहों में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हिदायत नहीं देंगे। तो यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो कभी इधर लटक रहे हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के, जहां फायदा देखते हैं वहां चले जाते हैं। और बिल्कुल ऐसी जैसे कहते हैं ना वो चूहिया की तरह बिल के अंदर जाती है तो दूसरी तरफ उसने एक सुराख रखा होता है कि इधर से घुसती है और दूसरी तरफ निकल जाती है। वही हाल करते हैं कि जहां से उनको डर रहता है दूसरी तरफ निकल के फायदे वाली जगह पे चले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए फिर हमारी पुकार है, ये किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं? बिल्कुल एक माँ की आवाज अपने कान में लाइए कि जब नाम लेके माँ पुकारती है ना इतने प्यार से कि बेटी मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ, ऐसा ना करना, ऐसी चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उन लोगों ने की थी, उनको बड़ा नुकसान हुआ था, अब तुम ऐसी चीज ना करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिजुल काफिरीना, कि मत बनाना काफिरों को औलिया, अपने दिली दोस्त ना बनाना काफिरों को, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़कर। मोमिनों को तो साथ नहीं देते हो। देखिए मोमिनों के साथ देने से, देखिए कभी ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अगर आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आए और आके ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम उसको करना चाहते हैं, तो आप लोग ये सोचें कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। यूजुअली होता है कि मैं तो नहीं ये कर सकती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर इनविटेशन आता है किसी ऐसे बड़े इंसान का कि जिसके जो काफिरीन में फॉर एग्जाम्पल है, और ऐसे लोगों के इन्विटेशन आता, भागे जाते हैं, इसलिए कि वहां पे तो तस्वीरें खींचेंगी तो फिर हमारी अखबार में भी आ जाएंगी और फिर हमारी टीवी पे भी आ जाएंगी, और अगर चले उस लेवल पे नहीं आएंगी तो व्हाट्सएप पे तो चलो मैं ही खींच के भेज दूंगी, अगर वो तो सबसे छोटा मीडियम है ना, लेकिन फिर हमारे फेसबुक में आ जाएंगी, ट्विटर पे आ जाएंगी, इधर उधर हर जगह पे आ जाएंगी। आप जरा देखिए तो सही ना, ये सारी की सारी आयात हमारे दिल को टटोलने वाली है। एक होता है ना नफाक को अंदर से खुरच खुरच के खत्म करना, उस तरह वाली आयात है, क्योंकि ये सारी बीमारियां मुनाफिकीन की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और अगर ऐसी कोई भी चीज हमारे अंदर है तो अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सारी बीमारियों से हमें बाहर निकाल दे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मत बनाना दोस्त औलिया अपने काफिरों को, मोमिनों को छोड़कर। आतुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तजलू कि तुम बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम अल्लाह को दलील देना चाहते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तुम ये बताना चाहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ये काफी है, ये दलील कि तुमने ये अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तुमने मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बना लिया है, तो तुम्हारे अगेंस्ट ये बात काफी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें सजा दे। ये मतलब है इसका कि अगर तुम ऐसे करते हो तो ये चीज ही काफी है तुम्हें सजा देने के लिए। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल मुनाफिकीना, बेशक मुनाफिक जो हैं वो लोग, फी दरकिल अस्फली, के दर्जे में होंगे, सबसे निचले दर्जे में, मिनन नार, आग के। अल्लाह अकबर। और देखिए दर्क कौन सा दर्जा होता है कि दोजख का वो मुकाम है जिससे दोजख भी पनाह मांगती है, इतना बुरा दर्जा है। देखिए बाकी देखिए जो काफिर हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते या जो भी गुनाह करने वाले इधर उधर सब लोगों का पूरी लिस्ट अपने दिमाग में रखिए, और फिर देखिए कि वो लोगों से भी बड़ा दर्जा किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आखिरी दर्जे में जो दर्क है ना जिससे दोजख पनाह मांगती है, उसमें मुनाफिकीन जाएंगे। तो फिर उनकी जो बीमारी है उसे हम जान कैसे ना छुड़ाएं, हम कैसे ना ये देखें कि अच्छा वो क्या करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुनाफिक कहा है, और हम मुसलमान होके हम कहीं वो बीमारियां हमारे अंदर तो नहीं आ गई हैं और हमें पता नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि सबसे नीचे दर्जे में होंगे आग के, वलन ताजिदा, और वो हरगिज नहीं आ पाएंगे, लहम उनके लिए, नसीरा, कोई मददगार नहीं पाएंगे। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली,
देखिए ये तौबा कितनी खूबसूरत चीज है, ये इतना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला का इनाम है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेशुमार नेमतें हैं ना दुनिया में, लेकिन जो तौबा जितना बड़ा अल्लाह का इनाम किसी भी इंसान के साथ हो सकता है ना, क्योंकि देखिए इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को बुरा ना कहो, उसका अगर आप अमल भी देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आप बुरा ना कहो, इसलिए हमें नहीं पता कि उसने तौबा कर ली, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली, उसके गुनाह नेकियों में बदल दिए, और उसको हम बुरा कहेंगे तो फिर हम कितने बड़े गुनाहगार हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मगर ये सारा कुछ अगर करने के बावजूद भी अगर वो कोई इंसान जो है वो तौबा कर लेता है, वह असलाह, देखिए तौबा ये नहीं है कि मुंह से बस अल्लाह सुब्हानहू तआला, ओ आई एम सॉरी, ये मैंने क्या किया अब नहीं करूंगी, और फिर अगले दिन फिर वैसी जिंदगी है, नहीं, वह असलाह, और अब उसने अपनी इस्लाह कर ली, अपने आप को ठीक कर लिया, व तसमू बिल्लाही, और उसने मजबूती से थाम लिया किसको, अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अल्लाह को कैसे थामेंगे, वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, पढ़ा था ना हमने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लो। देखिए अल्लाह की रस्सी कौन सी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ये कुरान जो है ना, ये अल्लाह की रस्सी है, और इसका सिरा जो दूसरा वो सीधा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। अब देखिए कहाँ हम इंसान और कहाँ मेरा रब, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह की रस्सी हम मजबूती से थाम लें, दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पकड़ा हुआ है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। इस कुरान को अपनी जिंदगी में खोलना पड़ेगा सबको, अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह के अहकामात समझने के लिए, अपनी जिंदगी को उस तरह से गुजारने के लिए जैसे मेरे रब ने कहा है। क्योंकि सौदा तो देखे ना आखिरत का है, इस दुनिया में अगर हम अपनी तरह से देखें, नेक जो है ना, नेकी वो तो काफिर भी करता है, नेक तो मुनाफिक भी नेकियां कर जाता है। लोगों ने बड़ी बड़ी अगर आप देखें तो मैं अक्सर एक सेंटेंस पढ़ा था कि जो ऐसी औरतें जो कोठे पे रात को काम कर रही हो, धंधा कर रही होती हैं, जैसे कहते हैं, अल्लाह माफ करे ऐसे वर्ड्स भी बोलने से डर लगता है, वो भी नेकी कर लेती हैं। नेकी क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को जानना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिन से क्या मांगते हैं, मुसलमान से क्या रिक्वायरमेंट है, हम कैसे ऐसे मुसलमान हो सकते हैं कि अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह ने क्या कहा कि अभी तो तुम मुंह से अपने मुसलमान, अभी तो तुमने सिर्फ कलमा पढ़ा है ना, तुमने कहा अभी तो तुम ईमान तो लाए ही नहीं हो। ईमान लाने के लिए हमें ये कुरान पढ़ना पड़ेगा, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को जानना पड़ेगा ना। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप ही हमारी मदद कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो ये कुरान जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसको मजबूती से थाम लो, बिल्लाहि व अखलसू, और खालिस हो जाओ, दीनहुम, अपने दिन में। अब देखिए हमने तो एक्सक्यूज मी, हम तो दुनिया में एक छोटी सी चीज भी लेते हैं, एक दूध भी लेते हैं ना, तो हमें वो भी खालिस चाहिए होता है। अगर हमें पता हो कि ये दूध में मिलावट है, हम उस जो दूध देने वाला आता है उसकी जान खा लेंगे। हम तो सोना भी लेते हैं तो हमें खालिस चाहिए, राइट। कोई चीज दुनिया में आप देख ले, दालें लेते हैं, चावल लेते हैं, हमें ये होता है कि इसमें कंकर नहीं हो, इसमें ऐसे नहीं हो, खालिस चाहते हैं ना। अपने लिए तो खालिस चीजें चाहे, और अल्लाह को जब अपने माल भेजो तो उसमें मिलावट हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह कैसे कबूल करेगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ वो अमाल कबूल करेंगे जो खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए होंगे। और खालिस कैसे होंगे? देखिए एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें दिखावा नहीं होगा। अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं और वो हम इसलिए भी करें कि हमारी वाह वाह हो जाएगी, उसको भी पता लग जाएगा कि हमने नेक काम किया, जहाँ पे हमें ये पता हो कि लोग देख रहे हैं वो तो हम भाग भाग के काम करें, जहाँ पे हमें ये पता हो कि किसी को पता ही नहीं कि ये मैं काम कर रही हूँ, वहां हम कह के चलो जी ठीक है मैं तो नहीं कर रही हूँ। होता है ना ऐसे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं एक नेकी करो तो 70 नेकियों के सवाब। माँ बाप को एक दफा मोहब्बत की नजर से देखो तो हज का सवाब मिल जाएगा। आप किसी का हेल्प, इतनी सी छोटी सी हेल्प कर देते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर ले तो वो क्या दर्जे आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी, आप देखिए कि किसी को आप हेल्प कर दो, किसी को मुस्कुरा के देख लो, किसी की कोई चीज उठा के उसके हाथ में दे दो, कोई चल रहा है उसको रास्ता बता दो, एक छोटी सी छोटी नेकियां आप जरा देखें जो हम पूरी जिंदगी में ऑफकोर्स हम कर रहे होते हैं, तो अजर तो देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को कैसे देगा। ऐसे तो नहीं फिर हम नूर के मेंबरों पे जाके बैठेंगे ना, जो फेवरेट हमारी बात होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना कि इतने मेरे अच्छे बच्चे थे, एक एक घंटा बैठ के हम कुरान की क्लास भी ले रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, सुना भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, अहद भी फिर कर रहे होते हैं साथ साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब ये काम नहीं करेंगे, जो मेरे रब को पसंद है वो करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जन्नतों में हमें तो भेजना है इंशाल्लाह। आप सब भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कबूल कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये जो छोटी छोटी हम नेकियां करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि छोटे से खजूर की अगर आप किसी को देते हो, खाने के लिए देते हो, किसी को भूख में दे देते हो, तो वो ओहद के पहाड़ जितनी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह
اتنا اس کا اجر مل جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دینے لگے تو وہ تو پھر اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے نا.